ابھی کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہماچل پردیش میں ایک جگہ ہے کانگڑا، وہاں پہ دو لوگ پھیری کرنے کے لیے آتے ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر مسلم مہیلا کہتی ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں پھیری کرنے آؤ گے، تجارت کرنے آؤ گے، تمہیں جے شری رام کہنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پہ نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی، یہ طریقہ تھا کہ آپ کھانا نہیں تناول فرماتے، مہمان کو ساتھ میں بٹھاتے، اس کے بعد میں کھانا تناول فرماتے، ساتھ میں مل کر کھاتے، مہمان کو بھی کھلاتے۔ ایک روز اتفاق سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مہمان نہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی، کوئی مہمان نظر نہیں آیا۔ آپ نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا تو کوئی ایک اجنبی دور نظر آیا۔ آپ اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا، اے شخص سنو، میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول کرو۔ وہ کہنے لگا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس سے کہا، بسم اللہ سے شروع کرو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وہ کہنے لگا کہ سنو، تم کہہ رہے ہو اللہ کا نام لے کر شروع کرو، لیکن میں کیا جانوں کون اللہ، کیا اللہ، میں تو مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا، میں اللہ کا نام کیوں لوں، میں تو مسلمان ہی نہیں، مجھے نہیں پتا اللہ کیا چیز ہے، کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سنو، اگر تم اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ حضرات محترم، جب اتنا کہا وہ مہمان اٹھ کر کے چلا گیا، اور جیسے ہی وہ نکلا تھا اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا۔ فوراً حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پیغام لاتے ہیں اور اللہ کا یہ حکم سناتے ہیں، سنو ابراہیم، تم نے جس بندے خدا کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی عمر تقریباً 100 سال ہو گئی اور اس کی ساری زندگی جو ہے کفر میں گزری، میں نے ایک وقت بھی اس کو بھوکا نہیں رکھا ہے۔ اور ابراہیم نے ایک وقت کھانا کھلانے میں کنجوسی کی، جبکہ پروردگار عالم تو اس کو ہمیشہ کھلاتا آیا ہے، کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا پیغام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سنا، میرے دوستو اب توجہ سے سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان سے اٹھے، دسترخوان سے اٹھنے کے بعد فوراً دوڑے اس کے پیچھے اور اس شخص کو تلاش کیا اور اس کو اپنے ساتھ لانے لگے۔ وہ کہنے لگا، چلوں گا لیکن ایک شرط ہے، ابھی تو تم نے مجھے بھگایا تھا اور ابھی لے کر جانے لگے، مجھے جب تک وہ بات نہیں بتاؤ گے کہ پھر کس وجہ سے آئے ہو، اس وقت تک تمہارا کھانا کھانے کے لیے میں تیار نہیں، تمہارا مہمان بننے کے لیے میں تیار نہیں، میری شرط ہے، آپ بتاؤ کیا ماجرا ایسا ہوا کہ آپ مجھے بلانے کے لیے فوراً دوڑے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جب اس نے اتنا کہا تھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا وہ واقعہ بیان کر دیا، اس بندے کے دل پہ اثر کر گیا اور یہی اس کی ہدایت کا سبب بھی بنا۔ وہ کہنے لگا، سنو، آپ اللہ کے خلیل ہیں، میں آپ کو بھی سچا مانتا ہوں اور اس پروردگار کو بھی سچا مانتا ہوں۔ سنو اے ابراہیم، وہ پروردگار اتنا رحیم، اتنا کریم کہ وہ اپنے بندے پر اتنا کرم فرمائے، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھاؤ نا، مجھے بھی اس پروردگار عالم کی بارگاہ تک لے جاؤ نا۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور حضرات محترم وہ آپ کی جو ہے کلمہ پڑھ کر کے آپ کی چھتر چھایا میں آ گیا اور آپ کا دین قبول فرما لیا۔ حضرات محترم، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے کہ مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ اور ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اس سے اس کا دھرم، اس کا دین اور اس کا مذہب معلوم کرنا ضروری نہیں، بس وہ بندے خدا ہے
अगर आप खाना खिला रहे हैं तो खिलाएं, उसमें आप ये ना मालूम करें कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, नाम क्या है, काम क्या है। सारा कुछ पूछोगे तो शायद वो शर्माएगा और वो आपके साथ खाना भी सही से नहीं खा पाएगा। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम का कानून है कि खाना खिलाओ, चाहे यहाँ का हो, वहाँ का हो, इधर का हो, उधर का हो। उसको खाना खिलाने में कोई कंजूसी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई उस पर शोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्चर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। उसको खाना खिलाना है तो आप खिलाओ हजरात। लेकिन आज देखने में ये आता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान में आज ये मामलात देखने को मिलते हैं। 1 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ, मुंबई का एक हॉस्पिटल है टाटा हॉस्पिटल, उसके बाहर कोई साहब खाना बांट रहे थे, सबको खाना बांट रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम महिला भी लाइन में लगी हुई थी। जब उसने खाना लेना चाहा तो उससे कहा गया कि हमारे मजहब का नारा बुलंद करो, उसके बाद खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। वो कहने लगा मेरे मजहब का नारा बोलो। लेकिन हजरात मुझे दिखाओ एक कोई ऐसी वीडियो, मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को फोर्स कर रहा हो और ये ज़बरदस्ती कर रहा हो कि जब तक अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे या जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे तुमको खाना नहीं दिया जाएगा। ऐसा एक भी वीडियो मुझे दिखा दो, ये मेरा चैलेंज है। नहीं दिखा सकते क्योंकि मुसलमान अमन वाला है, मुसलमान अमन पसंद करता है। लेकिन आज हमारे मुल्क अजीज में क्या हो रहा है, आए दिन खबर वायरल होती हैं। कभी खबर हमें सुनने मिलती है कि फुला जगह पर जो है मॉब लिंचिंग की गई और एक बंदे पर जुल्म करते हुए उससे कहा गया हमारे मज़हब का नारा बुलंद करो, और वो कहने लगा मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उस पर इतना तशद्दुद किया, जुल्म किया जालिमों ने, और उसको मारते मारते उसकी जान ही निकाल दी। बताइए कौन सा मज़हब ये सिखाता है। मैं नहीं मानता दोस्तों कि कोई मज़हब, कोई धर्म ये शिक्षा देता होगा, ये पैगाम देता होगा कि किसी को तुम जो है फोर्स करो अपना दीन कबूल करवाने के लिए या अपने मज़हब का नारा बुलंद कराने के लिए या खाना खिलाने के लिए। उससे पहले अपने मज़हब का नारा कहलवाना ज़रूरी है। किसी मज़हब की किताब में ये नहीं मिलेगा कि उसमें ये लिखा होगा अगर कोई तुम्हारे मज़हब का नारा बुलंद ना करे तो तुम उसको कत्ल ही कर डालो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों को देखो तो दुनिया भर में जहाँ भी लंगर तकसीम होते हैं, दिखाओ कोई अगर कहता हो तो कि अल्लाह अकबर जब तक नहीं बोलोगे खाना नहीं मिलेगा। और हम इस पर किसी पे जो है एहसान नहीं जताते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे ज़रिए अल्लाह अपने बंदों का जो है खाने का बंदोबस्त फरमा रहा है। वरना हज़रात मोहतरम हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है हम बंदों को खाना खिलाएं। ये अल्लाह का फजल और करम है और यकीनन अल्लाह ही खिलाता है, अल्लाह ही पिलाता है, बंदा तो बस ज़रिया होता है, रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है। ये तो 1 महीने पहले की बात है, लेकिन अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहाँ पे 2 लोग फेरी करने के लिए आते हैं, गालिबन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। वही गरम कपड़े चादरें वगैरह वो बेचते हैं, तिजारत करते हैं। एक महिला है, नॉन मुस्लिम महिला, गैर मुस्लिम महिला खातून, जो कि एक पंचायत की सदस्य भी हैं। वो कहती हैं कि अगर हमारे इलाके में फेरी करने आओगे, तिजारत करने आओगे तो तुम्हें हमारे मजहब का नारा बोलना होगा, तुम्हें जय श्री राम कहना होगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों बोलें, तुम हमारा कलमा पढ़ो। वो कहने लगी हम तुम्हारे यहाँ पर कुछ बेचने आते ही नहीं है, हम क्यों तुम्हारा कलमा पढ़े, तुम तो हमारे यहाँ आते हो, तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की फ़ज़ा इन लोगों ने ख़राब की है। आज ऐसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान का माहौल ख़राब होता है। आप नहीं देखते आए दिन दंगे फसाद, टॉर्चर करना, मॉब लिंचिंग के केस कितने दर्ज हो रहे हैं, कितनी वीडियो वायरल होती हैं आए दिन। लेकिन मुसलमान की कोई ऐसी वीडियो नहीं कि जो वो फोर्स करे
अगर आपने किसी से ज़बरदस्ती अपना कलमा पढ़वा भी लिया या आपने अपने धर्म का नारा बुलंद करवा भी लिया, उससे फ़ायदा क्या होगा? जब तक बंदा दिल से कबूल ना करे तो वो कोई भी मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, आपके धर्म में अगर आप ज़बरदस्ती उसको लाना चाहेंगे, हरगिज़ कन्वर्ट नहीं हो सकता, हरगिज़ वो दिल से कबूल नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे अगर वो बोल भी दे, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म को क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। फ़ायदा क्या फिर ऐसी बातों का? फ़ायदा क्या ऐसे मामलात का? फ़ायदा क्या ऐसे जुल्म और ज़्यादती का? हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे कि हम अपना डर और खौफ बिठाएंगे, लोगों के दिलों पर जो है हम अपना डर बिठा देंगे। याद रखो, मुसलमान कल भी कम थे और आज भी कम हैं, लेकिन कभी भी मुसलमान जो है जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है। हज़रात, जब इंतहा होती है तो फिर वो यही कहता है कि मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियां अंदलुस के साहिल पे, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। फिर मुसलमान ये कहता है, मत छेड़ो किसी को, मत किसी के धर्म के साथ और धर्म वालों के साथ अत्याचार करो। हालात बस से बदतर हुए जा रहे हैं। आज संभल के हालात देखो। आज तो मुझे खबर सुनने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन आपने नहीं देखा 5 लोगों का जो है कत्लेआम हुआ, गोली मार दी गई। ये कौन से कानून को फॉलो कर रहे हैं? संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि जो मस्जिद बन गई, मंदिर बन गया, हमेशा वहां पर रहने दिया जाएगा, उसको मिसमार नहीं किया जाएगा। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज के जज और आज के अधिकारी लोग भी कानून को कैसे पास कर देते हैं और कैसे याचिका दायर होती है और एकदम उस पर कार्रवाई हो जाती है। 2 घंटे के अंदर जो है सर्वे टीम तैयार करके और हाथों हाथ रवाना कर दी जाती है और वहाँ पे जाके जो है मार दिया जाता है। बताइए, क्या संविधान यही सिखाता है? संविधान का रट्टा लगाने वालों, संविधान को तुमने एक साइड रख दिया है, अपनी मनमानी करते हो। याद रखो, संविधान से हिंदुस्तान चलता है, ये भारत चलता है, ये इंडिया हमारा संविधान के बेस पे चलता है। आज हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। अगर वो जुल्म करेगा, जालिम होगा, तो उसको सज़ा भुगतनी होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किस किस बात का रोना रोया जाए? बस इतना कहना चाहूँगा, ऐ मेरे दोस्तों, नमाज़ों की पाबंदी करो, अपनी मस्जिदों मदरसों की हिफाजत करो। और वो जो शहीद हो गए मस्जिद के लिए, वो शराब पीते हुए नहीं मारे गए, वो चोरी करते हुए नहीं मारे गए, वो किसी को सताते हुए नहीं मारे गए, बल्कि वो अगर मारे गए हैं तो वो शहादत की मौत मरे हैं, मस्जिद के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। हज़रात मोहतरम, जो दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये मकाम अता फरमाया है कि वो हम जैसे करोड़ों पर भारी है, हम जैसे करोड़ों से बेहतर है, क्योंकि उसने अपनी जान को अल्लाह के घर मस्जिद के लिए जो है कुर्बान किया है। हज़रात, बातें बहुत हैं, बस इतना कहना चाहूँगा, ऐ मुसलमान, बस तू अपने किरदार का गाजी बन जा, जीतना पाए तुझे तू ऐसी बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी। शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा।